Good morning students. We are discussing chapter number 2 in which in the last video we have discussed about error and its combinations. Today we are going to discuss a new topic named as significant figures. So first point is what are significant figures? तो बेटा significant figure क्या होती हैं? एक नंबर में वो सारी डिजिट जो कि हमारी कैसी होती हैं, रिलायबल होती हैं, प्लस जो उसमें फर्स्ट डिजिट जो होती है दैट इज अनसर्टेन। तो ऐसा जो नंबर होता है वो नंबर हमारा क्या कहलाता है? सिग्निफिकेंट नंबर कहलाता है। और उसकी जो डिजिट होती है वो कैसी कहलाती है? सिग्निफिकेंट डिजिट कहलाती है। सो द रिलायबल डिजिट्स प्लस द फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट आर नोन एज significant digit or significant figures. For example, you can say period of oscillation of a simple pendulum is 2.36 seconds. Here the digit 2 and 3 are reliable and certain. क्योंकि 2 और 3 हमारी हर टाइम पे वही आती रहेंगी। लेकिन जो लास्ट डिजिट है 6 ये अनसर्टेन है, क्योंकि जब हमारा पीरियड ऑफ ऑसिलेशन चेंज होता है तो मोस्टली वो लास्ट डिजिट ही हमारी वेरी करती है। अदरवाइज जो हमारा पूरा कॉम्बिनेशन है वो सेम टाइम के अंदर हमारा एक पीरियड कंप्लीट करता है। थस द मेजर्ड वैल्यू हैज 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। नेक्स्ट हमारा आता है द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिपोर्टेड आफ्टर मेजरमेंट टू बी 287.5 सेंटीमीटर हैज 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। व्हाट आर द 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स बेटा? 2, 8, 7 and 5. All the 4 digits are significant figures in which 2, 8, 7 are certain while the last digit 5 is uncertain. आगे क्या बोला गया है इसके लिए कि choice of change of different units doesn't change the number of significant digits or figures in a measurement. किसी भी एक measurement में if we are changing a unit system then the number of significant digits cannot be changed. Always the number of significant digits will be constant. So, for example, you can see here the length is measured as 1.205 centimeter. If you will convert in terms of meter, then it will be 0.01205. If you will convert it in millimeter, then it will convert in terms of 12.05. While in micrometer it will be 12050 micrometer. But these are the 4 different unit system. But in all the cases the number of significant digits are same, which is 4. We will discuss further how these significant digits are same. So in this slide we will discuss the rules for determining the significant figures. What are the rules for determining the significant figures? First rule क्या कहता है बेटा आपको? All the non-zero digits are significant. Means एक नंबर में जो भी non-zero digit है सारी digits कैसी होंगी? हमेशा significant होगी. Like we are taking an example of digit 3452. All the 4 digits are non-zero. So these all are significant figures. Next हमारा आता है बेटा all the zeros between 2 non-zero digits are significant. हमारे दो non-zero digits के बीच में जितने भी जीरो वैल्यूज होंगी वो सारी जीरो जो नंबर्स हैं वो कैसे होंगे? सिग्निफिकेंट होंगे. नो मैटर where the decimal point is, if at all. Means अगर decimal point contain करता है नंबर उस केस में भी, और if the number doesn't contain the decimal point in that case also. If there are two non-zero digits and in between them there are some zeros, all the zeros will consider as significant figures. So here you can see 50076. If you will take this number from up to this point, you will not take the decimal part. Then 5 and 7 are two non-zero digits and zeros are lying between the two non-zeros. So these two zeros will consider as significant figure.
So up to this point, this has the 5 significant digits. But when you will take the whole number, then 0.50076.002 means हमारे पास डेसिमल है, डेसिमल के एंड पे हमारे पास नॉन जीरो डिजिट है, एंड बिफोर द डेसिमल वी आर हैविंग द नॉन जीरो डिजिट. So 6 and 2 are non-zero digit. In between them, the 2 zeros are lying. So these 2 zeros are also considered as significant figures. The next rule is, if the number is less than 1, the zero on the right of the decimal point but to the left of the first non-zero digit are non-significant. अगर नंबर लेस देन 1 है तो उस केस में हमेशा जब डेसिमल की टर्म में हम लिखेंगे तो हमेशा हमारा नंबर डेसिमल की टर्म में 0 से लेस देन आएगा, सॉरी 0 से ग्रेटर देन आएगा बट 1 से लेस देन आएगा. तो उस केस में हमारे पास डेसिमल से लेफ्ट साइड में कोई भी नॉन जीरो डिजिट नहीं प्रेजेंट होगी व्हेन द नंबर इज लेस देन 1. The non-zero digit was always present on the right side of the decimal point. So in that case, the initial zeros will not consider as significant figures. Like in this example, you can see 0.00238. This number is less than 1. In this number, there is no non-zero digit to the left of the decimal. All the non-zero digits lie on the right of the decimal. So just just to the right of the decimal point, the zeros will not consider as significant figures. These will be non-significant. So the significant figure in this case will be 2, 3 and 8. So number of significant figures are 3. Next rule is number of trailing, the terminal or the trailing zeros in a number without a decimal point are not significant. Means if a number is having 0 at its end and decimal point is not present, then those zeros will not consider as significant figure. Like in this example 345,800, the number doesn't contain the decimal, so the trailing zeros are 2, 0. These will not be significant. So the number of significant figures in this case will be 4, 3, 4 and 5, 8. The next rule is the trailing zeros in a number with the decimal point are significant. Means if there is a decimal point in the number, in that case the trailing zero will consider as significant figures. These are some rules that we have to obey it. 3.500. Here the decimal is existing, so the trailing to 0 will consider as significant figure. Here the significant digits are 4, 3, 5 and 00. The next slide is scientific notations. What are the scientific notation? बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जब हमारे पास कोई भी एक नंबर होता है हम उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, a इंटू में 10 टू द पावर b. यहाँ पर जो ये वाला पार्ट है, लाइक यू कैन सी हेयर 3.5 इंटू में 10 टू पावर 2, इसको हमने 350 को डिनोट किया है. 35 इंटू में 10 टू पावर 1, 350 इंटू में 10 टू पावर 10. जो हमने इससे पहले वाली स्लाइड पे डिस्कस किया था कि यूनिट चेंज करने पर उसमें सिग्निफिकेंट जीरो, सॉरी सिग्निफिकेंट जो नंबर्स है वो चेंज नहीं होते हैं. ये जो चीज है ये वही चीज हमारे पास एक्सप्लेन करेगी. तो ये जो हमारा एक जनरल टर्म है a इंटू 10 टू पावर b, इसमें b जो है वो एक्सपोनेंट है और जो कोफिशिएंट a है वो कोई रियल नंबर होता है और उस a कोफिशिएंट को हम क्या बोलते हैं, सिग्निफिकेंट या फिर मैंटिसा. जो b है दिस इज एन इंटीजर पार्ट, दिस इज नोन एज एक्सपोनेंट पार्ट, while this a is maybe any real number, this is known as significant or mantissa part. For example, this example 350 is written as 3.5 into 10 to power 2. This form allows easy comparison of two numbers of the same sign a. As the exponent b gives the number, b जो होगा वो हमेशा आपको उस ऑर्डर का नंबर देगा कि वो जो आपका नंबर है वो लार्जर है कि स्मॉलर है, क्योंकि जितना हमारे पास यहाँ पावर होगी
वो पॉजिटिव में होगी नंबर हमारा उतना ही बड़ा होगा, जितना पावर हमारी नेगेटिव में होगी द नंबर विल बी लेसर. सो दिस विल गिव द about the number, comparison of number. B gives us the order of the magnitude. This is all about the scientific notation. Come to the next part. Rules for arithmetic operations with significant digits, figures. यहाँ पर क्या बोला गया है बेटा? In arithmetic operations, the final result should not have more significant figure than the original data from which it was obtained. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, इसको आपको बहुत अच्छे से समझना है. क्या बोला गया है कि जब हम कोई अर्थमेटिक ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो जो हमारा रिजल्ट आता है उस रिजल्ट में जो ओरिजिनल डेटा था उससे ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होनी चाहिए. जैसे हम पहली बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की. इफ दीज आर द अर्थमेटिक ऑपरेशन वी हैव टू ऑपरेट दीज ऑपरेशंस ऑन एनी फिगर, देन द फाइनल रिजल्ट शुड रिटेन एज मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स एज आर देयर in the original number with the least significant figure. ओरिजिनल नंबर में जिसके पास least significant figure है उस फिगर के जितनी जो significant figure है वही हमारी फाइनल रिजल्ट के अंदर आएंगी. दिस इज अबाउट मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. कम टू द नेक्स्ट पार्ट अबाउट एडिशन एंड subtraction. The final result should retain as many decimal places as are there in the number with least decimal place. डेसिमल प्लेस के साथ में जो लीस्ट डेसिमल प्लेस में जितनी सिग्निफिकेंट फिगर है उतनी ही सिग्निफिकेंट फिगर हमारी इस नंबर में जो रिजल्ट आएगा उसमें रहेंगी इन केस ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. सो दिस इज ऑल अबाउट अर्थमेटिक ऑपरेशन विद सिग्निफिकेंट फिगर्स. ये जो चीज है बेटा ये हम जब हम ऑपरेट करेंगे, एडिशन करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो यही अर्थमेटिक ऑपरेशन हम डिफरेंट प्लेसेस पे यूज करेंगे. कम टू द नेक्स्ट पार्ट, राउंडिंग ऑफ अनसर्टेन डिजिट्स. ये वाला जो पार्ट है इसको हम देखते हैं. तो राउंडिंग ऑफ करने में हमारे पास क्या है बेटा? राउंडिंग ऑफ ए नंबर मींस जो हमारे अनसर्टेन डिजिट है, जो कुछ डिजिट्स है जो नॉन सिग्निफिकेंट है उनको ड्रॉप कर देंगे. तो पहला रूल क्या है? इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड आर ग्रेटर देन 5 देन ऐड 1 टू द प्रीसीडिंग सिग्निफिकेंट फिगर. लाइक हमें ये जो नंबर है इसको 3 डिजिट तक का सिग्निफिकेंट हमें राउंड ऑफ करना है. तो 2, 7, 4 आर द 3 डिजिट्स, 6 वी हैव टू ड्रॉप. अगर जो ड्रॉप करने वाला नंबर है इफ दैट इज ग्रेटर देन 5 तो उसमें जब राउंड ऑफ करते हैं तो उससे प्रीवियस डिजिट में हम 1 ऐड कर देते हैं. 6 इज ग्रेटर देन 5 सो वी विल ऐड 1 in 4. So the significant digit figure will be 2.75. The next rule is if the digit to be dropped is less than 5. If it dropped without bringing any change in the preceding significant figure. Let us suppose कि यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल है 2.743. इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है कि हमें 3 डिजिट तक का इसको भी राउंड ऑफ करना है. तो राउंड ऑफ में जो ड्रॉप करनी है वो डिजिट हमारी क्या है? 3 है. इस रूल में क्या दिया हुआ है कि इफ द डिजिट इज लेस देन 5 देन वी विल नॉट चेंज द प्रीसीडिंग डिजिट, इट विल बी कांस्टेंट. सो इट विल द राउंडिंग ऑफ डिजिट विल बी 2.74. द नेक्स्ट रूल इज इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 देन देयर मे बी टू केसेस. जो ड्रॉप करने वाले डिजिट है वो इवन हो सकती है और वो ऑड हो सकती है. तो इवन और ऑड के केस में डिफरेंट रूल्स हमारे फॉलो होंगे. इवन के केस में जो हमारा रूल होगा वो क्या कह रहा है बेटा? 2.745. अगर हम इसको राउंड ऑफ करें तो हमारा जो ये डिजिट है ये 5 है. इससे पहले वाला केस में इवन है, तो इवन है तो हम उसको एज इट इज रखेंगे, कोई चेंज नहीं करेंगे. तो इट इज 2.74. व्हेन द डिजिट इज ऑड देन वी विल इंक्रीज बाय 1, सो इट विल बी 2.74. इफ एनी इन्वॉल्व्ड और कॉम्प्लेक्स multi step calculation, one should retain its intermediate step 1 digit more. बिकॉज जब हम फाइनल रिजल्ट देखेंगे तो हमारे पास उसमें हमें फाइनल डिजिट को हम क्या करेंगे? राउंड ऑफ करने के बाद उतने ही डिजिट्स आए जितने की ओरिजिनल डेटा में प्रेजेंट थे. इसलिए जो इंटरमीडिएट स्टेप्स है उनमें हम एक डिजिट लार्जर रखते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट द राउंडिंग ऑफ द सिग्निफिकेंट डिजिट्स. वी विल डिस्कस फर्दर इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.